Assalamualaikum and welcome my YouTube channel Hira English Academy. I am Hira and now today we are discuss about the topic part of speech. So a lot of students are very confused what is the part of speech and what is a noun, pronoun, adjective, adverb and etc. So now we are discuss about a part of speech. So first we are discuss what is part of speech. Part of speech होता क्या है? So part of speech are the classification of words categorized by their roles and functions within the structure of the language. Part of speech are the classification of words categorized by their roles and functions within the structure of the language. So part of speech क्या होता है? आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स की क्लासिफिकेशन है जिसमें लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम देखते हैं कि इन अल्फाज का, उन वर्ड्स का क्या फंक्शन है और क्या रोल है. ओके, एंड नाउ वी आर डिस्कस अबाउट 8 पार्ट ऑफ स्पीच. सो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच. फर्स्ट, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. So part of speech are the classification of words. Hope so you can understand what is the part of speech. So part of speech, I again repeated the definition. Part of speech are the classification of words है ऐसे अल्फाज की क्लासिफिकेशन जिसमें जो लैंग्वेज है उसके स्ट्रक्चर के अंदर हम उन वर्ड्स के फंक्शन और उनके रोल्स को क्या करते हैं, कैटेगराइज किया जाता है. सो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ नाउन. सो नाउन, it is the name of person, place, animal, thing or idea. For example, teacher, car, chair, student, cat, etc. So these are the examples of the noun. Noun, teacher, car, chair, student, cat, etc. यानी कि नाउन हम किसको कहते हैं? किसी भी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस का नाम, एनिमल, थिंग और किसी भी कोई भी आइडिया हो सकता है. तो वो किस में आता है? नाउन में आता है. जैसे टीचर, कार, चेयर, स्टूडेंट, कैट एक्सेट्रा. The second is what is pronoun. So pronoun is used is at the replace of a name of a person, place, thing or idea in a sentence. It is used in replace of the name of person, place, animal,
हम इसको प्रोनाउन को यूज करते हैं रिप्लेस, किसकी जगह यूज करते हैं, नाउन की जगह। यानी कि नाउन क्या होता है कि नाम होता है, नेम होता है पर्सन का, किसी प्लेस का, एनिमल का, थिंग का, एनी आइडिया। तो हम किसके रिप्लेस में प्रोनाउन को यूज करते हैं, एज अ नाउन के रिप्लेस में। तो दिस इज अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल राइट इट देयर, लाइक he, she, it, they, we, him, his, etc. So these are the example of a pronoun. He, she, it, they, we, him, his, etc. So now we are discuss about what is a verb. Verb is a word that and a group of words that describe an action or an experience. So verb क्या होता है, verb एक ऐसा लफ्ज हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकते हैं, ओके, जो कि डिस्क्राइब करता है किसको, एक्शन को या फिर एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉक, सी, लिसन, एटसेट्रा। सो व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज अ वर्ड or group of words that describe an action or experience. For example, like listen, talk, walk, sit, etc. So these kinds of words are the verbs. Because ये words जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक्शन प्ले कर रहे हैं, ठीक है, जैसे listen, walk, talk, walk, sit. So these kind of words are verbs. So now the next part of speech is adverb. Adverb tells how often, how, when, where, and it also describe a verb. Adverb क्या करता है, वो describe करता है, किसको describe करता है, verb को describe करता है. So now we discuss about adverb. Adverb क्या करता है, वो describe करता है verb को, और ये बताता है कि how often यानी कि कैसे, कब और कहाँ जो है वो एक्शन जो है वो प्लेस हुआ है, इनके डिस्क्राइब किया है, कौन सा एक्शन जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो वो कौन डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वर्ब जो है वो एक एक्शन है, और एक्शन जो है वो कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो क्या कौन चीज़ बताता है, वो एडवर्ब बताता है कि एक्शन कब, कैसे और कहाँ हो रहा है. सो बेसिकली एडवर्ब टेल्स हाउ ऑफन, how, when, where, कि एक एक्शन जो है कब, कहाँ, कैसे हो रहा है, एंड इट डिस्क्राइब अ वर्ब. क्योंकि वर्ब क्या करता है, वो डिस्क्राइब क्या करता है, एक एक्शन को डिस्क्राइब करता है, तो वो एक्शन कहाँ पे, कैसे और कहाँ और कैसे और कब हो रहा है, तो वो किस चीज़ कौन डिस्क्राइब करता है, वो एडवर्ब डिस्क्राइब करता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक लाउडली, for example quietly, late, soon. So these are adverbs. Always and etc. So these are the adverbs: loudly, quietly, late, soon, always, etc. So these are the words which describe the verb. So these are the adverb. So the next part of speech is adjective. What is adjective? An adjective describe a noun or a pronoun. Adjective describe a noun or a pronoun. So adjective is the next part of speech, and adjective describe
एग्जाम्पल tall, red, etc. Other example like long, red, tall, beautiful. You also like beautiful, long. So these are all adjective. Red, tall, red, beautiful, long. These are all adjective because adjective describe a noun or a pronoun. Like tall boy. So here is the tall is adjective because boy is a noun. बॉय क्या है, एक नाउन है और बॉय नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये यहाँ पर टॉल वर्ड हमने ये अटैच किया, तो टॉल क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, टॉल बॉय. सो दिस इज द एडजेक्टिव. So I again repeated what is a verb, adverb and adjective. So verb is a वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब किसको करते हैं, एक्शन को और एक्सपीरियंस को. फॉर एग्जांपल लिसन, टॉक, वॉक, सिट, अनदर एग्जांपल एटसेट्रा. एंड एडवर्ब हेल्प करते हैं, क्या चीज़ बताते हैं, हाउ ऑफन, कैसे, कब, कहाँ, व्हेन एंड वेयर, क्यों, कहाँ और कैसे और कब, कहाँ क्या हो रहा है, एक्शन प्लेस हो रहा है. इट डिस्क्राइब अ वर्ड. फॉर एग्जांपल लाउडली, क्वाइटली, लेट, सून, ऑलवेज एक्सेट्रा. एंड एडजेक्टिव डिस्क्राइब क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा. ठीक है, जैसे टॉल, रेड, ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जांपल्स. देयर इज द टॉल बॉय. बॉय इज अ नाउन एंड टॉल इज अटैच्ड विद अ नाउन. सो टॉल इज अ एडजेक्टिव. So now we discuss the next part of speech. What is a preposition? So preposition is used before a noun, pronoun or a genus to show place, time or direction in a sentence. तो preposition क्या होता है, ये हम यूज़ करते हैं noun, pronoun और gerund से पहले. ठीक है, ये किस चीज़ को शो करता है, ये place को, time को, direction को शो करता है किसमें, sentence के अंदर. So now we see the definition of a preposition. A preposition is used before noun, pronoun or gerund. And it, और ये क्या करता है, ये हम किससे पहले यूज करते हैं, नाउन, प्रोनाउन से पहले और जीरंड से पहले. और किस चीज को शो करता है, टू शो प्लेस, टाइम और डायरेक्शन. प्लेस, टाइम और डायरेक्शन इन अ सेंटेंस. यानी कि एक सेंटेंस के अंदर क्या, कौन सा, कहाँ, किस चीज़ को शो कर रहा है, प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन को इन अ सेंटेंस. सो फॉर एग्जांपल एट, इन, ऑन, अबाउट, फॉर एक्सेट्रा. इन, ऑन, एट, अबाउट, फॉर एक्सेट्रा. Now I explain further. I will give you the one example like doll is in the box. So in this sentence, doll is in the box. So in this sentence, in is the preposition. ठीक है, क्योंकि ये किस चीज को शो कर रहा है कि कौन सी चीज कहाँ पे. अगर डॉल इज, यानी कि कोई डॉल जो है वो बॉक्स और डॉल और है. अगर डॉल इज और द और सन बॉक्स है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि जो है वो डॉल वो कहाँ पे है, बॉक्स के ऊपर है, नीचे है, कि उसके अंदर है, कि उसके पीछे है. तो ये चीज़ें कौन बताता है, ये प्रपोजिशन से पता चलती हैं. अब यहाँ पर जो इन है वो क्या है, प्रपोजिशन है कि डॉल जो है वो बॉक्स के अंदर है, कि इसमें है. ठीक है, तो इन क्या है, वो प्रपोजिशन है, क्योंकि ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये प्लेस को शो कर रहा है कि कोई भी चीज़, कोई भी नाउन कहाँ पर है.
So next is the, I hope so you understand what is preposition, and so next is conjunction. So conjunction join words or group of words in a sentence. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज कंजक्शन. कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इन अ सेंटेंस में. Like example, and, because, yet, since, until, but, etc. But, and, until, since. So these are the conjunction. And, because, etc. But, and, until, because, since, etc. So these are the conjunction. because ये क्या करता है? वर्ड्स को ज्वाइन करता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं किस चीज को? कंजंक्शन को. बिकॉज, आई कम हेयर बिकॉज आई वॉन्ट टू सी यू. यहाँ पर हम क्या करते हैं? अगर आई कम हेयर, मैं यहाँ पर आई हूँ, अगर मैं बिकॉज नहीं लगाऊंगी तो आपसे कैसे पता है आई वांट टू सी यू? तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन सही से समझ नहीं आएगी. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? बिकॉज लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमने ज्वाइन क्या किया है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. 1 2 3 यहाँ पे वर्ड्स को, यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड्स को हमने क्या किया? ज्वाइन किया. ये कंप्लीट सेंटेंस है. ये 2 सेंटेंसेज जो फ्रेजेज हैं उनको हमने ज्वाइन करने के लिए हमने क्या लगाया है? बिकॉज लगाया है. अगर हम बिकॉज नहीं लगाते तो यहाँ पे ये फुल सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. फुल सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ है जब हमने यहाँ पे सेंटर में बिकॉज लगाया है. तो हमने क्या किया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हमने क्या किया? ज्वाइन करने के लिए किसको यूज किया? बिकॉज को. तो बिकॉज किया यहाँ पर? बिकॉज इज अ कंजंक्शन. सो दिस इज अ कंजंक्शन. बिकॉज ये क्या कर रहा है? यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइन करें टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स को. कौन ज्वाइन कर रहा है? बिकॉज. सो बिकॉज इज अ कंजंक्शन. So this last part of speech is interjection. What is interjection? So interjection क्या करता है? हम एक्सप्रेस करता है strong emotion को, and is often followed by an exclamation mark. उसको हम किस मार्क से जो है ना शो करते हैं? exclamation mark. And now let's examine definition. What is interjection? So interjection express किसको कर रहा है? strong emotion को. It express strong emotion. अब interjection क्या करता है? interjection express करता है strong emotion को, and is often followed by an exclamation mark. This is a exclamation mark. Exclamation mark or point. This is an exclamation mark which I put it there. This is like the example. I write it the example there because there is no any space. Like example, well, hooray, bravo. I gave you one example like given the sentence. I gave it. Now there I write one sentence to explain it. Like bravo, you got A+ grade. जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं लाइक ब्रावो, हुर्रे, वेल, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो हैं, या हमारे जब हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं
तो these kinds of वर्ड जो कि हमारे किसको शो कर रहे हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रावो, यू गॉट A+ ग्रेड, हम बहुत खुश हो देंगे तो हम क्या कहेंगे ब्रावो। सो यहाँ पर क्या लगाना है, हमने एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। सो इससे पता चलता है कि ये वाला वर्ड क्या है, ये है इंटरजेक्शन। सो दिस इज द इंटरजेक्शन। So hope so you understand all parts of speech, all words of part of speech. So and the next thing is that if you are not understand any type of part of speech, you can also comment to me and ask from any type of definition which you want to ask from me related to related to this topic. If you have any type of question, you can also ask from me. Hope so you like my video and subscribe my channel, YouTube channel. Allah Hafiz.